Dear students, today we will discuss about the regulation of population growth, the factors which control or affect the population growth and regulate the population growth. Today we will discuss all about this topic. Earlier we will discuss how the population growth occurs and the main consequences of population growth. When a population of organism becomes too large, the individuals will suffer because there will not be enough resource for everyone. जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो रिसोर्सेज यानी जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए रिसोर्सेज these resources what are the resources are as food, water and shelter. So the resources are enough not enough to everyone यानी जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए रिसोर्सेज संसाधन उतने अधिक नहीं हैं तो फिर पॉपुलेशन में का रेगुलेशन होता है और पॉपुलेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है व्हाट आर द मैकेनिज्म फैक्टर्स which govern the population growth. Each population has size that is just right for it and there are natural method limiting factor to control population growth. Population experience many impositions during their growth which try to regulate or limit their growth. There are two basic categories of population regulation factors. अगर हम population regulation के factors की बात करें तो हम broadly इनको दो categories में बांट सकते हैं. Number 1, density dependent factor. These are the factors which affects directly population density. So these factors are called density dependent factor because if any changes in the factors in these factors then density will increase or decrease, population density will increase or decrease. So these factors are called as density dependent factors, but there are certain factors which do not directly affect the density, population density. So these factors are known as density independent factors. These factors may also affect density, but they do not control or they do not regulate the population density, and they do not control the birth rate and population death rate of the population. So there are two major categories of the population growth regulating factors. Number 1A is density dependent factor. There are the factors which affect a population because of the density of the population. यानी ये वो फैक्टर हैं जो सीधा का सीधा कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को. एंड दीज फैक्टर्स आर बर्थ and death rate, birth rate and death rate, mortality and natality, and two minor factors are emigration and immigration are also the density dependent factors. These factors directly control or regulate the population density, and due to the population density decrease or increase, population control occurs in nature. So birth fall और डेथ रेट यानी जन्म दर का कम होना या डेथ रेट राइज या मृत्यु दर का बढ़ना, जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का बढ़ना विद दी पॉपुलेशन डेंसिटी. यानी अगर जन्म दर कम हो जाती है और डेथ रेट बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की खुद की अपनी संख्या है, उस संख्या ने क्या कर लिया है? पॉपुलेशन को रेगुलेट कर लिया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल। बर्थ फॉल यानी जन्म दर कम हो गई, डेथ रेट मृत्यु दर बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उस हैबिटेट के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, उसकी साइज कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दिस शोज दैट दिस population or this condition is density dependent factor. Some of the density dependent factors are as these are the density dependent factor which directly govern the density affecting factors which are known as birth rate, natality, mortality, immigration and emigration. These factors are food, भोजन, कंपटीशन फॉर मेटिंग और ब्रीडिंग एरियाज, डिजीज यानी उनके डिजीज काज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट, परभक्षियों द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा उन पर बीमारी उत्पन्न करना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, कोई भी नई स्पीसीज, बाहर से कोई भी नई स्पीसीज अगर किसी नए एरिया के अंदर एंटर कर जाए तो इस एक्सोटिक स्पीसीज के एलोलीपैथिक इफेक्ट के कारण वहां की जो इंडिजिनस स्पीसीज है, उन पर खतरा मंडरा जाता है और उनकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली गवर्न हो जाती है, उनके पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभावित हो जाती है। किसके कारण? फूड के कारण, फूड शॉर्टेज हो जाए या फूड की बहुत ज्यादा हो जाए, कंपटीशन हो किनका? ब्रीडिंग सीजन के अंदर, या डिजीज हो जाए या एक्सोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो जाए या इंक्रीज प्रेडिशन, परभक्षियों की संख्या बढ़ जाए। अगर किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो परभक्षी हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए तो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन पर खतरा मंडरा जाता है, उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। कंपटीशन फॉर वाटर एंड अदर, और पानी और अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रति भी कंपटीशन हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डायरेक्टली कंट्रोल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर habitat. So these are called as density dependent factor. These factors influence a population in proportion to its size. ये इसकी पॉपुलेशन की साइज के अकॉर्डिंग इसको प्रभावित करते हैं। एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती है, अफेक्ट इंटेंसिफाई, यानी इन फैक्टर्स का जो प्रभाव है वो भी तीव्र हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स आर कंपीटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जो एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज की जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रति लड़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इंक्रीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यदि अगर आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वृद्धि कर दें तो क्या होगा? देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उस हैबिटेट की रिसोर्सेज बढ़ने के कारण उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा था वो अब बढ़ जाएगा। सो इफ द रिसोर्स इंक्रीज, K also increase, यानी carrying capacity also increase and the correspondingly the population size. Density can also increase the mortality rate. Density can also increase the mortality rate when overcrowding leads to the physiological stress and decreased natality. Density यानी जैसे जैसे पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट के अंदर डेंसिटी बढ़ती है तो मोर्टेलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों?
क्योंकि इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और उनकी मोर्टिलिटी बढ़ती है और नेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है. बोथ दीज प्रोसेस ट्राई टू ब्रिंग बैक द पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम. और ये दोनों फैक्टर यानी डिक्रीज इन नेटिलिटी एंड इंक्रीज इन मोर्टिलिटी प्रोसेस ट्राई टू ब्रिंग बैक पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम. और ये दोनों फैक्टर जो पॉपुलेशन है उसको इक्विलिब्रियम पर ले आते हैं. इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन प्ले वेरी important role in growth regulation are slowly density dependent. In plant population, especially tree stands, self thinning is a common phenomena. सेल्फ थिनिंग का मतलब है कि पादपों की बढ़ती हुई संख्या के अंदर जो पादप हैं वो ऑटोमेटिकली जो कमजोर होते हैं या जो डिजीज हो जाते हैं वो ट्रीज ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं नेचर के अंदर. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज थिनिंग. और इससे क्या है जो ट्री स्पीसीज है उनको बढ़ने के लिए स्पेस मिल जाता है. क्लार्क in 1990 demonstrate that even age stands show density dependent motility. यानी density dependent motility, there is a relationship between individual plant growth and population motility. यानी जो डेंसिटी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है उसके साथ साथ मोर्टिलिटी भी बढ़ती जाती है. सो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टिलिटी. The other group of factors is known as density independent influences or factors. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली डेंसिटी को प्रभावित नहीं करते, यानी ये किसी तरह से पॉपुलेशन को रेगुलेट करके डेंसिटी नहीं बदलते. पहले वाले ग्रुप में ऐसे फैक्टर्स थे जो डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जैसे बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उनको रेगुलेट करके डेंसिटी को कंट्रोल करते, पॉपुलेशन को रेगुलेट कर रहे थे. यहां पर ये ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने वाले या कम करने वाले प्रोसेस को में कोई चेंजेस नहीं करते, कोई रेगुलेशन नहीं करते, बल्कि ये सीधा ही डेंसिटी को बदल देते हैं. डेंसिटी इनसे प्रभावित ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसलिए दीज आर नोन एज डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर. डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन regardless of population density. Birth rate and death rate will not change in the population. ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. Birth rate and death rate. The factors are flood, fire. यानी इस कैटेगरी में ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो बर्थ रेट को नहीं प्रभावित कर रहे, डेथ रेट को नहीं प्रभावित कर रहे, बल्कि वो सीधा ही ऐसे इफेक्ट डालते हैं कि पादप की जो प्रोसेस है, बर्थ रेट, डेथ रेट, उस प्रोसेस को नहीं बदलकर उसकी डेंसिटी को बदल देते हैं. जैसे बाढ़ आ गई एरिया के अंदर, फायर, दावाग्नि हो गई, यानी जंगल की आग लग गई है, या स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का छिड़काव कर दिया है, या क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट और टेम्परेचर परिवर्तन हो गया है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट का अपने आप में हैबिटेट ही नष्ट हो गई है, या ड्रॉट, सूखा पड़ गया है, या साइक्लोन या हैरिकेन्स आ गया है. तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन को जो कमी आएगी, इससे क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बदल जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी. सो दीज फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन बट नॉट रेगुलेट पॉपुलेशन. यानी पॉपुलेशन की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट नहीं कर रहे, लेकिन पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं. एक साइंटिस्ट हैं W.C. Alley, an ecologist known as for his extensive research on social behavior of animal, gave a concept known as Alley's principle. According to Alley, both undercrowding, low population density limit growth and survival of population. There are a number of examples in both plants and
animals where Ehrlich's principle holds good. A number of plant species occur in groups which may be in response to habitat preference or suitable climate or environmental conditions or due to reproductive strategy. There are some graph which can by which we explain the density or density independent or density dependent factors. Here x-axis population density and y-axis birth or death rate of any individuals. If we plot x-axis density and y-axis mortality and natality, then red line is show density dependent death rate, यानी जो मृत्यु दर है वो डेंसिटी से प्रभावित है, और जन्म दर भी डेंसिटी, और जो ब्लू लाइन है बर्थ रेट है वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर से प्रभावित है, यानी दोनों मोर्टेलिटी भी और नेटेलिटी दोनों ही क्या है, किससे प्रभावित है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर से प्रभावित हैं. तो क्या होगा, द बर्थ रेट डिक्रीज slowly and in the mortality increase slowly, and there is a crossing point, and this crossing point is known as equilibrium point, and the density of this crossing point is known as equilibrium डेंसिटी. यानी ये जो डेंसिटी आएगी पॉपुलेशन की, इस डेंसिटी को पॉपुलेशन को बैलेंस डेंसिटी कहा जाएगा, यानी साम्य अवस्था, डेंसिटी की साम्य अवस्था कहा जाएगा. दूसरा जो ग्राफ है इसके अंदर शो किया गया है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ रेट, यानी मृत्यु दर है वो इंडिपेंडेंट है, वो डेंसिटी से प्रभावित नहीं है. तो आपने जो एक्स एक्सिस पर डेंसिटी प्लॉट की गई है उसके पैरेलल आएगा, यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी उस पर मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए जो लाल लाइन है वो सीधी रेखा में आएगी. तो लाल लाइन पर यानी मोर्टेलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्थ रेट है वो क्या है, वो डेंसिटी डिपेंडेंट है. तो जैसे जैसे पादप की डेंसिटी बढ़ेगी या इंडिविजुअल्स की डेंसिटी बढ़ेगी, बर्थ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या आएगा, दोनों रेड एंड ब्लू लाइंस क्रॉस करेंगी, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा, और इस डेंसिटी को इक्विलिब्रियम डेंसिटी कहा जाएगा. इसी का अपोजिट तीसरा ग्राफ है, वाई एक्सिस पर वही डेंसिटी है, वह एक्स एक्सिस पर डेंसिटी लिया है, और वाई एक्स पर क्या लिया है, मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी लिया है. यहां पर जो बर्थ रेट है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, यानी नेटेलिटी है उस पर डेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी बर्थ रेट पर कोई प्रभाव नहीं होगा. तो बर्थ रेट एक सीधी रेखा में आएगा ब्लू लाइन के रूप में, और ये जो लाल लाइन है जो कि डेंसिटी डिपेंडेंट है, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी मृत्यु दर या डेथ रेट या मोर्टिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पॉपुलेशन डेंसिटी से कंट्रोल हो रहा है. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगी, और उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस पर जो क्रॉस है उस क्रॉस को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम डेंसिटी. सो बाय दीज थ्री ग्राफ्स वी इजीली understand the density dependent and density independent factors which regulate the population growth. Thank you.